Yes, students, you have read about two grasslands. Uh, First of all, prairies, and then about velds. Both are tropical, both are temperate grasslands. There are two types of grasslands, as you know, temperate grasslands and tropical grasslands. In this chapter, in grasslands, you have read about two types of grasslands, and they are in temperate region. And first you have read about prairies, that is in North America, and then you have read about wild, that is in South Africa. In prairies, you have read that main crop is wheat. Main crop of the people of prairies is wheat, and due to this, prairie is known as the granaries of the world. Wheat bowl of the world, bread basket of the world, granaries of the world. कुछ भी पेपर में आ जाए, आंसर इज सेम. Why prairies is known as the granary, wheat basket, or wheat bowl, bread basket of the world. कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, आंसर will be same. You have to write there. Prairies is known as the granaries of the world because we can say here the production of wheat is more. Due to more production of wheat, yeah, wheat is found here in surplus. Wheat is grown here in surplus. यहाँ पे wheat बहुत ज़्यादा grow होती है. अब आपको पूछती हूँ मैं कि क्यों ऐसा, वाई. तो आपने कहना है कि ये जो प्रेरी है ना, यहाँ पे जो फार्मलैंड है ना, एक मिनट, प्रेरी में जो फार्मलैंड है ना, दे आर वेल मैकेनाइज्ड. ठीक है. Whole work of the farmland, whole work is done with the help of machines. Sowing, winnowing, threshing, harvesting, and even storing of food grains is also done with the help of machines. So we can say production of wheat is more here. That's why prairie is known as the wheat bowl or granaries of the world. In chapter Weld, you have read that soil is not so fertile. Weld में आपने पढ़ा है कि soil ज़्यादा fertile नहीं है. But few crops can be grown in Weld. Weld is richest in minerals. For example, Kimberley and Johannesburg. You have read about Johannesburg and Kimberley. Johannesburg is known for gold mines. Johannesburg is known as the gold capital of the world, and Kimberley is famous for diamond mines. So Weld has trade relations with other countries, and it has good network of roadways, railways. Earlier, Weld was the colony of British. As India was the colony of British, Weld also was the colony of British. जैसे इंडिया में डच आए, इन वेल्ड डच, जो वेल्ड में भी डच गए थे, एंड द नेम वेल्ड वाज गिवन बाय डच सेटलर्स. डच सेटलर्स ने ये नेम दिया था वेल्ड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल you have read about both, and now I am want to discuss the question answers of these two topics. First is temperate grasslands of North America. जो है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? What are the temperate grasslands of North America called? You know it well now. Prairies. Temperate grasslands of North America are called prairies. अब मैं आपसे पूछूं, what are the, मैं अब इसे opposite करके बोल रही हूँ. It's not given in the book. This question is not given at the back of the book, but it can be asked. What are the temperate grasslands of South Africa called? Then you will write wild. ठीक है. Next, what are cattle farms in North American grasslands known as? Cattle farms in North American grasslands are known as ranches. तो ये क्वेश्चन दूसरी फॉर्म में भी आ सकता है. व्हाट आर रेंचेस? इसी को उल्टा करके आंसर को ही मैं क्वेश्चन में कन्वर्ट कर रही हूँ. व्हाट आर रेंचेस? ओपन फार्मलैंड्स, ओपन ग्रासलैंड्स. आप कैसे लिखोगे? ओपन ग्रासलैंड्स वेयर एनिमल्स आर ग्रेज्ड in prairies is known as ranches. Listen again.
Question can be come in this form also. What are the cattle farms in North American grasslands known as? फिर तो सिंपल आंसर है ranches. अगर मैं पूछूं व्हाट आर रेंचेस, अभी आंसर को मैंने क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया. व्हाट आर रेंचेस? ओपन ग्रासलैंड्स इन नॉर्थ अमेरिका वेयर open grasslands in North America where animals are grazed is known as ranches. Next, name the rivers that drain wells. यहाँ पे wells की rivers पूछी हैं, तो you know it well. Interesting से name थे, river Orange, river Limpopo and their tributaries. Tributaries तो लिखना ही लिखना है. River Orange and river Limpopo. River Orange and river Limpopo. Next is, अब अगर मैं आपको ये क्वेश्चन उल्टा करके प्रेरीज के बारे में पूछ लूँ, नेम द रिवर दैट ड्रेन, आपको कहा जाए अमेरिकन प्रेरीज, तो यू विल राइट मिसिसिपी, रिवर मिसिसिपी एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. अगर मैं बोलूँ नेम द रिवर दैट ड्रेन कैनेडियन प्रेरीज, तो आप बताओगे रिवर सस्केचुअन एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. अगर मैं सिंपल पूछूं नेम टू रिवर्स ऑफ प्रेरीज, प्रेरी ग्रासलैंड्स, तो यू विल राइट रिवर मिसिसिपी, रिवर सस्केचुअन. दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन दिस फॉर्म आल्सो. ओके. नेक्स्ट इज वेल्ड दिया हुआ है तो प्रेरी पूछ सकते हैं, ये नहीं है बुक की बैक पे वेल्ड है तो वेल्ड ही क्यों नहीं पूछा. नो, क्वेश्चन कैन बी चेंज्ड. नेक्स्ट, व्हेन इज द रेनी सीजन इन वेल्ड्स? वेल्ड्स में रेनी सीजन कब होता है? You know it well. नवंबर टू फेब्रवरी. नवंबर टू फेब्रवरी. आपको पता है ना वेल्ड में when there is winter season in वेल्ड there is summer season in prairies, because prairies is in northern hemisphere whereas वेल्ड is in southern hemisphere. You know it well. This question can also be asked, what's the difference between the आपको पूछा जा सकता है कि यहाँ के फ़र्क क्या है, यहाँ के क्लाइमेट में या यहाँ के वेदर में क्या फ़र्क है. तो आप बताओगे व्हेन देयर इज समर सीजन, जब समर सीजन इन वेल्ड होता है ना, देयर इज विंटर सीजन इन प्रेरीज. व्हाट्स द रीजन व्हाई? आपने बताना है प्रेरीज लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वेयरएज वेल्ड लाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर. तो वेल्ड में रेनी मंथ्स जो है ना वो विंटर, उनके उनके वो तो समर है ना. आपको ये लग रहा होगा नवंबर टू फरवरी, बट उनके बच्चे वो समर मंथ्स है. नवंबर टू फरवरी आर द समर मंथ्स इन वेल्ड्स एंड दीज आर द रेनी मंथ्स इन वेल्ड्स. ठीक है. आपको पूछा जाए कोल्डेस्ट मंथ ऑफ वेल्ड, आपको हैरान हो जाओगे सुन के, है ना, कि हमारे तो इतनी गर्मी होती है, लू होती है, हमें तो स्कूल में वेकेशन हुई होती है उन दिनों, तो उनका वो कोल्डेस्ट मंथ है दैट इज जुलाई. हमारे तब रेनी सीजन चल रहा होता है. जुलाई इज द कोल्डेस्ट मंथ इन वेल्ड. ये सब 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकते हैं. नेक्स्ट, मेजर ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीकन ग्रासलैंड. साउथ अफ्रीका के ग्रासलैंड्स का आपको मेजर ऑक्यूपेशन पूछा वहां के लोगों का. In this you will write about, first of all you know it well कि यहाँ पे मेरिनो वूल पाई जाती है, मेरिनो sheep farming is the main occupation. sheep farming is the main occupation. cattle rearing है, sheep farming है, फिर आप कह सकते हो mining, because वेल्ड is known for gold and diamond mines. यहाँ पे Johannesburg is famous for gold mines and Kimberley is known for diamond mines. So we can say कि मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ वेल्ड इज. अब अपने आप सोचो, सबसे पहले तो मेरिनो वूल आपके दिमाग में आएगी, मीन वहाँ पे वूल इंडस्ट्री है ना. तो आप बताओगे फर्स्ट ऑफ ऑल शीप फार्मिंग, देन कैटल रियरिंग एंड देन यू विल राइट अबाउट माइनिंग. दीज आर द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल ऑफ वेल्ड. बाकी आप जितने मर्जी लिखी जाओ, पीपल आर इन्वॉल्व इन वूल इंडस्ट्री, है ना, फिर आप जो मर्जी लिखी जाओ, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइज रीजन है ये वेल्ड. ट्रेड रिलेशंस हैं, पीपल आर इन्वॉल्व इन वेरियस ट्रेड एक्टिविटीज, क्योंकि ये मिनरल्स जो है ना, ड्यू टू दीज मिनरल्स वेल्ड हैज ग्रेट ट्रेड रिलेशंस विद अदर कंट्रीज. यहाँ पे गुड नेटवर्क ऑफ रोडवेज एंड रेलवेज है, क्योंकि दूसरी कंट्रीज व्यापार करने आती हैं. तो यू कैन राइट अबाउट दीज आल्सो, डिपेंड अपॉन योर विश, बट मेन ऑक्यूपेशन जो है ना वो जरूर लिखनी है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे. आपको फर्स्ट लिखना है शीप फार्मिंग,
आप साथ में एक लाइन लिख सकते हो मेरिनो शीप के बारे में, ठीक है। वहाँ पे मेरिनो वूल पाई जाती है जो कि फाइनेस्ट क्वालिटी की वूल होती है in the world, known for finest variety of wool in the world, merino wool. फिर आप कह सकते हो कैटल रेयरिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन, क्योंकि यहाँ पे ड्रैकनबर्ग्स माउंटेन्स भी हैं, यू नो ड्रैकनबर्ग्स माउंटेन्स भी हैं, कलाहारी डेजर्ट भी है वेल्ड में। वेल्ड के ईस्ट की साइड, टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ वेल्ड देयर इज ड्रैकनबर्ग्स माउंटेन्स, टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ वेल्ड देयर इज कलाहारी डेजर्ट। इट मीन्स अफ्रीका में 2 डेजर्ट्स है ना, मैंने ब्लैक बोर्ड पे भी एक डेजर्ट बनाया, वो देखो सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट इज इन नॉर्थ अफ्रीका, इन द नॉर्थ ऑफ अफ्रीका। अबाउट दिस वी विल रीड इन नेक्स्ट चैप्टर। एंड हियर Kalahari desert that lies to the west of Veld, and towards the east of Veld there is Drakensberg's mountain. In prairies you have read about Rocky Mountains. In the west, prairie में आपने west side mountains पढ़ी हैं, and in east of prairies you have read about Great Lakes. You have read about Great Lakes. Prairies में आपने 3 countries भी पढ़ी हैं, US, then you have read about Canada, and then towards the south there is Mexico. So this is all about the question answers. Next, अगर आपको पूछा जाए main occupation of the people of prairies, this is not given at the back, this question is not given at the back, so you will write agriculture. Wheat is the main crop grown in prairies. आप ये बताओगे, मेन तो एग्रीकल्चर पे आप आ जाओगे और आप बताओगे कि प्रेरीज में वीट की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, एंड प्रेरीज नोन एज द ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड। पहले तो आप ये बताओगे एग्रीकल्चर, फिर आप बताओगे टुवर्ड्स द वेस्ट, जहाँ पे मैंने बोला है रॉकी माउंटेन्स, है ना। मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज कैटल रियरिंग। वेस्ट की साइड लोग कैटल रियरिंग करते हैं, जहाँ पे रेंचेस पाए जाते हैं, वेयर रेंचेस आर फाउंड। रेंचेस मैंने अभी आपको बताया, ओपन ग्रासलैंड्स वेयर एनिमल्स आर ग्रेज्ड, तो वहाँ पे लोगों का मेन ऑक्यूपेशन कैटल रियरिंग है। इट मीन्स जहाँ पे कैटल रियरिंग होगी ना, यू विल राइट इन वेल्ड आल्सो एंड इन प्रेरीज डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग मिल्क प्रोडक्ट्स का व्यापार भी होता है वहाँ पे, मिल्क, घी, चीज, बटर, ये सब का व्यापार होता है वहाँ पे, क्योंकि कैटल रियरिंग इज द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल हियर। एंड इन प्रेरीज आल्सो देयर आर मिनरल्स, प्रेरीज में भी मिनरल्स हैं, कोल एंड आयरन। कोल एंड आयरन आर फाउंड इन प्रेरीज, तो प्रेरीज में भी माइनिंग में इन्वॉल्व हैं लोग, ठीक है। तो यू विल राइट अबाउट द ऑक्यूपेशन। ये ना हो जाए आपके गोल्ड एंड डायमंड प्रेरीज में हो जाए, देन यू विल गेट 0। गोल्ड एंड डायमंड आपके वेल्ड के हैं, गोल्ड माइंस एंड डायमंड माइंस वो वेल्ड के हैं। प्रेरीज में कोल एंड आयरन है। कोल एंड विच मिनरल्स आर फाउंड इन प्रेरीज? कोल्ड एंड आयरन। तो लर्न अबाउट दीज, ठीक है। दीज आर द डिफरेंसेस। बाई चांस आपको डिफरेंसेस में आ जाए क्वेश्चन, कंपेयर नॉर्दर्न प्रेरीज विद, आपको ऐसे आ जाए प्रेरीज को आप वेल्ड के साथ कंपेयर करो, तो पहले तो लोकेशन में ही फर्क आ जाना है, ठीक है ना। फिर वहाँ पे कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं प्रेरीज में, अपने आप पता चलेगा आपको, उधर के मिनरल्स बताओ अगर आपको कंपेयर आ जाता है। तो सेकंड आप क्लाइमेट के बारे में बताओगे, लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस। अगर वहाँ पे समर सीजन है, वहाँ पे विंटर सीजन है, लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस, ठीक है। तो इस वे से आप प्रेरी और उसको बता सकते हो। और वर्ल्ड में आप बताओगे कि गोल्ड एंड डायमंड माइंस है, जोहान्सबर्ग, किम्बरले, और यहाँ की रिवर्स बताओगे। यहाँ की मेन रिवर्स है मिसिसिपी एंड सस्केचुअन, उधर की रिवर्स है रिवर ऑरेंज एंड लिम्पोपो। तो कम टू एक्सरसाइजेस। रिवर मिसिसिपी ड्रेन्स, अब सबको पता है ना, तो वो कनाडा है ना ही अफ्रीका है, क्या होना चाहिए? यूएस। रिवर मिसिसिपी ड्रेन्स, मिसिसिपी ड्रेन्स यूएस, रिवर मिसिसिपी ड्रेन्स क्या आएगा? यूएस। नेक्स्ट, ड्रैकनबर्ग्स माउंटेन्स आर टू द, सबसे पहले तो ये बुक में रॉन्ग दिया हुआ है, इसे आप ठीक करो। ड्रैकनबर्ग्स माउंटेन्स आर टू द ईस्ट ऑफ आना चाहिए, क्योंकि वेल्ड के वेस्ट साइड कलाहारी डेजर्ट है एंड वेल्ड के ईस्ट साइड ड्रैकनबर्ग्स माउंटेन्स हैं। यहाँ पे ये रॉन्ग दिया हुआ है। ड्रैकनबर्ग्स माउंटेन्स आर टू द ईस्ट ऑफ, यू नो इट, वेल्स। Merino is a species of sheep. Merino is a species of sheep. Kimberley is famous for,
Kimberley is famous for, you know it well, diamond mines. Kimberley is famous for diamonds. And अगर मैं जोहान्सबर्ग बोल दूँ तो gold. Next, cowboys. Cowboys are found in prairies. Ranches में पाए जाते हैं, you know it well. Ranches में जो हमने अभी पढ़ा है, towards the west of prairies, there are Rocky Mountains. प्रेरीज के वेस्ट में रॉकी माउंटेन्स है, वहाँ पे रेंचेस हैं. एंड कैटल रियरिंग इज डन बाय काउबॉयज. काउबॉयज प्रेरीज में पाए जाते हैं. गोल्ड. गोल्ड में आप अपने आप कितना इजी है, जोहान्सबर्ग. कुडू. कुडू एनिमल है जो कि वर्ल्ड में पाया जाता है. चीता, लॉयन, लेपर्ड्स, कुडू, ये एनिमल है दैट इज फाउंड इन वर्ल्ड. Next is Chinook. Chinook is a hot wind. Chinook hot wind है that blows in prairie grasslands. जैसे हमारे यहाँ पे लू चलती है ना, वहाँ पे Chinook है. अब आपको ये यहाँ पे, हमारे तो लू समर में चलती है, वहाँ पे ये Chinook विंटर में चलती है, जब प्रेरिस में विंटर सीजन होता है ना. बिकॉज इन प्रेरिस इन विंटर टेम्परेचर जो है ना बिलो 20 डिग्री सेल्सियस चला जाता है. तो इन विंटर Chinook विंड ब्लोज दैट इंक्रीजेस द टेम्परेचर, जो कि टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है और लोगों के लिए कुछ कंफर्टेबल हो जाता है. अगर नहीं टेम्परेचर इंक्रीज होएगा तो उनको ज़्यादा सर्दी लगेगी. लिसन अगेन, Chinook इज अ हॉट विंड. हॉट विंड है दैट ब्लोज इन प्रेरीज, जो कि कहाँ पे ब्लो करती है, प्रेरीज में. कौन से सीजन में ब्लो करती है, विंटर सीजन में. वाई इन विंटर? इन विंटर टेम्परेचर इन प्रेरीज जो है ना कहाँ तक चला जाता है, बिलो 20 डिग्री सेल्सियस. तो Chinook इंक्रीज द टेम्परेचर इन विंटर सीजन. विंटर में वो टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है, कंफर्टेबल हो जाता है लोगों के लिए थोड़ा सा. नेक्स्ट, कोल. कोल मिनरल है. कोल, आयरन एंड स्टील. Coal, iron and steel minerals found in coal and iron found in prairies. Coal and iron minerals are found in prairies. So I think हाँ ये भी आप सुन लो. गिव रीजंस में है, नो डाउट गिव रीजंस आपको आते होंगे. लिसन केयरफुली. प्रेरीज आर नोन एज द ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड. इसी को मैं बोलूँ, व्हाई प्रेरीज नोन एज द ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड. ये तो मैं कितनी बार डिस्कस कर चुकी हूँ. बिकॉज ऑफ सरप्लस वीट. सरप्लस वीट यहाँ पे क्या पाई जाती है, वीट इज ग्रोन हियर इन सरप्लस. लार्ज प्रोडक्शन ऑफ वीट प्रोड्यूसर है ये एरिया. इसका आप कह सकते हो कि यहाँ पे वीट की प्रोडक्शन इज मोर. प्रोडक्शन ऑफ वीट इज मोर इन दिस रीजन. ठीक है, वीट इज फाउंड इन सरप्लस यहाँ पे. तो इस वे से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो. वाई प्रेरीज नोन एज द ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज ऑफ द सरप्लस wheat grown here is the largest producer of wheat in the world. So due to this, prairie is known as the granaries of the world. आपको मैंने एक बात और बताई थी. मैंने बताया था कि जैसे कि इंडिया में we live in northern plains. सबको पता है हम नॉर्दर्न प्लेन्स में रहते हैं, है ना. नॉर्दर्न प्लेन्स जो है ना, हम जहाँ पे रहते हैं, दिस इज नोन एज द वीट बाउल ऑफ इंडिया. हमारा जो ये एरिया है ना, यहाँ पे वीट की प्रोडक्शन बहुत होती है नॉर्दर्न प्लेन्स में. तो नॉर्दर्न प्लेन्स को हम कहते हैं वीट बाउल ऑफ इंडिया. ये वीट बाउल ऑफ इंडिया है. बट प्रेरी, प्रेरी जो है दैट इज वीट बाउल ऑफ वर्ल्ड है. वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन ऑफ वीट होती है. तो इसलिए नॉर्दर्न प्लेन्स को हम कहते हैं वीट बाउल ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया के अकॉर्डिंग सारी स्टेट्स में नॉर्दर्न प्लेन्स की एरिया में सबसे ज़्यादा क्रॉप जो है ना वो वीट की पाई जाती है. तो नॉर्दर्न प्लेन्स को वीट बाउल ऑफ इंडिया बोला गया. वेयर एज प्रेरी, प्रेरी वाला एरिया दैट इज नोन एज वीट बाउल ऑफ द वर्ल्ड. एंड अर्लियर, यू नो इट वेल, मैंने एक इंटरेस्टिंग बात भी बताई थी. अर्लियर प्रेरी वाज नोन एज द ग्रासलैंड. फ्रॉम ग्रासलैंड इसे वाइट सेटलर्स ने कन्वर्ट किया वीट बाउल में. फ्रॉम ग्रासलैंड प्रेरी बिकेम वीट बाउल. वीट बाउल बन गया. सॉइल फर्टाइल होगी एंड आप फार्म्स मैकेनाइज्ड हो गए वहाँ पे. तो उसका बैड इम्पैक्ट भी पड़ा, बिकॉज पीपल ऑफ प्रेरीज दे हैड डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस.
सो दैट्स वाई नाउ वीट बाउल जो है ना वो बन गया डस्ट बाउल. नो दिस रीजन हैज बिकम डस्ट बाउल. डेली डस्ट स्टॉर्म्स के सफोकेशन से कितने एनिमल्स मर जाते हैं, लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं. नो पीपल रियलाइज देयर मिस्टेक. अब लोग अपनी मिस्टेक को रियलाइज कर रहे हैं कि दे शुड नॉट डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द नेचर. दे शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज. उन्होंने इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब किया. अर्लियर मैंने बोला ना दैट वाज ग्रासलैंड. ग्रासलैंड से बना वीट बाउल. वीट बाउल से अब ये क्या बन चुका है, डस्ट बाउल. क्योंकि जो सोड है ना, मोटी वाली मिट्टी जो होती है वो कन्वर्ट हो चुकी है ड्यू टू ट्रैक्टर्स. इतने यूज हुई है ना मशीन्स वहाँ पे, तो जो सोड है ना दैट वो कन्वर्ट हो चुकी है इन डस्ट. और इसीलिए प्रेरी में डस्ट स्टॉर्म्स कॉमन हो चुके हैं. वहाँ पे डस्ट स्टॉर्म्स डेली आते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट. एक और क्वेश्चन रह गया, राइज ऑफ वूल इंडस्ट्री इन वर्ल्ड. आपको ये पूछा जाए व्हाई देयर इज वूल इंडस्ट्री इन वर्ल्ड. क्यों वूल इंडस्ट्री वहाँ पे डेवलप हुई है वर्ल्ड में. आपको मेन आंसर इज मेरिनो शीप. आपने बताना है मेरिनो शीप इज फाउंड इन वर्ल्ड. मेरिनो शीप पाई गई है वर्ल्ड में. एंड वूल ऑफ मेरिनो शीप इज फाइनेस्ट वेराइटी ऑफ फाइनेस्ट क्वालिटी. जो मेरिनो शीप की वूल है ना वो फाइनेस्ट क्वालिटी की है. एंड इट हैज़ ग्रेट डिमांड इन द वर्ल्ड. उस वूल की पूरे वर्ल्ड में बहुत डिमांड है. सो ड्यू टू दिस प्रेरी में वूल इंडस्ट्री डेवलप हो चुकी है क्योंकि वहाँ पे मेरिनो शीप वहाँ पे पाई गई है. एंड शीप फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ वर्ल्ड. वर्ल्ड में लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या है, शीप फार्मिंग. ड्यू टू मेरिनो शीप, वहाँ पे मेरिनो शीप पाई गई है. वूल ऑफ मेरिनो sheep is of finest variety and it has great demand in the world. So due to this wool industry has developed in world. तो वर्ल्ड में वूल इंडस्ट्री डेवलप हो चुकी है. जैसे प्रेरी ग्रैंडरीज ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है ना, वर्ल्ड वूल इंडस्ट्री के लिए फेमस है पूरे वर्ल्ड में. और वैसे भी वर्ल्ड में तो गोल्ड एंड सिल्वर माइंस भी हैं, गोल्ड एंड डायमंड माइंस भी हैं. तो इस वे से आप इस चैप्टर को लर्न कर लोगे. आई थिंक इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर. कहीं पे भी बोरिंग नहीं है. आपको नई नई चीज़ें सुनने को मिली हैं. आपका दिल भी कर रहा होगा जोहान्सबर्ग जाएं, किम्बरले जाएं, गोल्ड माइन देख के आएँ, डायमंड माइंस देख के आएँ, है ना, मेरिनो शीप देख के आएँ, उसकी वूल देखें कैसी है. वूल तो यहाँ से भी मिल जाएगी. मेरिनो वूल बहुत वार्म होती है. ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी पे कर लेने हैं बच्चे. और एक्सरसाइजेस को भी आपने साइड बाय साइड सॉल्व करना है. इज इट क्लियर? सो लर्न